Hello student, good morning one and all. Welcome back to physics class. Today lecture number 4, chapter 6, properties of matter. Okay, तो आज हम देखने वाले कि जो हमने यंग मॉड्यूलस निकाला है वाई-बाय-सेल्स मेथड, उसका जो ग्राफ है कि व्हाट विल द नेचर ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. राइट, हमने प्रीवियसली हमने देखा पॉइसन रेशियो देखा, हुक्स लॉ देखा. विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन कब तक? विद इन इलास्टिक लिमिट. ओके, तो यहाँ पे हम वापस थोड़ा सा ग्राफ उसका स्टडी करेंगे. राइट, कि हाउ डज द वायर गेट स्ट्रेच. ओके, तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ फॉर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. Stress is along y-axis and strain along y-axis. This will be tensile stress and tensile strain, because in which there is a corresponding change in length. Okay, so initially as we applied the force on a wire, suppose this is the rigid support, right, to the ceiling, and the wire is suspended, uniform thin wire, uniform cross section area. This is original length of the wire L, and after applying the load at the free end of the wire, okay, so it may stretch. Okay. So here we are applying the load. Load is attached. Initially there will be 500 gram load, 0.5 kg. Okay, and slowly we have to increase the load, and we have to observe the extension produced in the wire for every load. Understand? So this is the change in length, small l. Okay, so small l upon capital L will be the tensile strain, and whatever the force applied per cross section of area of this wire, so F by A, this will be the tensile stress. So initially what happened, as the stress increases, जैसे जैसे stress बढ़ाओगे, जैसे जैसे load बढ़ाओगे, वैसे वैसे strain in the wire also increases in proportion of stress. So there will be the straight line. So I will use another color for this. So straight line passing through origin, okay, from the stress strain graph. So up to this is point O, this is point A. So up to point A, as the stress increases, strain also increases. Right. Suppose if we remove the load from point A, जैसे आधा किलो बढ़ाते गए और यहाँ पे हमने लोड निकाल लिया, तो क्या होगा? It will obey the elastic limit. So this is called as a proportionality limit. Proportionality limit. Proportional limit means in the proportion of stress applied to this wire, the strain also increases with the same proportion, so that the ratio of stress and strain remains constant. Okay, now further after point A, there is this stress not directly proportional to strain, so there is little bit curve. यहाँ पे थोड़ा curve आएगा. Up to point B, I will take little bit smaller. Okay, up to point B. Here also, when we remove the load at point B, even though the stress not directly proportional to strain, okay, यहाँ तक Hooke's law obey होता है, in which Hooke's law obeys. Hooke's law obey. Okay, so ये elastic region है, right? Further, when we increase the load from A to B, right, and at B, again if we remove the load, what will happen? Whatever the extension produced in the wire, that will regain its original dimension, that will regain its original length. Okay, so this point is called as yield point, or it's also known as elastic limit. मतलब यहाँ तक elasticity दिखा रहा है. हमारा elasticity property क्या है? As the force applied on a body, okay, after removing deformation takes place, and after removing deforming force, the body regain its original dimension.
So we can call that property is elasticity. So here also up to the point A, B, O to B, this wire obey the elastic property, but it does not obey the Hooke's law. Does not obey the Hooke's law because the small change in stress, there is a large change in strain. थोड़ा सा स्ट्रेस लगाया तो ज़्यादा स्ट्रेन हुआ है, but still up to the point B, it obey the elastic limit. Okay, so this point is known as yield point. Yield point, or is also called as elastic limit. Okay, and further if you increase the load, जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे, स्ट्रेस बढ़ाओगे, तो there is a large change in the strain ज़्यादा बढ़ता है. Let this point be C, इसको C point ले लेता हूँ मैं. Okay, so at this point from B to C, when we further remove the load, वापस यहाँ पे लोड रिमूव किया, स्ट्रेस रिमूव किया, but the wire does not regain its original dimension. अभी यहाँ पे जो लेंथ ऑफ वायर था, जो लेंथ ऑफ वायर कैपिटल L था, वे लेट दिस वायर भी 10 मीटर, मान लो 10 मीटर है. ओके, बी पॉइंट है, क्या हो गया, लोड निकालने के बाद अगेन इट विल रीच टू द 10 मीटर लेंथ ऑफ द वायर ओनली. बट व्हेन वी फर्दर increase the load, increase the stress, okay, small change in stress, there will be large change in strain. Okay, because of the large change in strain, what happens when we remove the again this deforming load, deforming force, the wire will not regain its original dimension. अभी यहाँ पे लेंथ बढ़ेगी तो लेंथ में भी 10.1 मीटर या 10.05, थोड़ा सा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा जो 10.02 मीटर होगा, मे बी लाइक दिस. ओके, तो थोड़ा सा वायर का जो डिफॉर्मेशन है वो रह जाता है. द वायर विल नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन एट पॉइंट सी और फ्रॉम बी टू सी, एंड दैट्स वाई वी कैन ड्रॉ हियर स्ट्रेट लाइन. लेट दिस पॉइंट इज ई and this is called as permanent set. This point is known as permanent set. Permanent set. Okay, now further when we increase the stress, वापस small change in stress, there is a large change in strain. अभी ये जो region है, this region is not elastic. ये elastic region नहीं है, अभी ये बन गया plastic region. So this region is called as plastic region or plasticity. प्लास्टिक रीजन बन गया क्योंकि इलास्टिक लिमिट यहाँ तक, इलास्टिक रीजन अप टू बी तक है. भले ए टू बी यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे नहीं है, ओके, बट इट ओबे द obey the elastic limit. Okay, means after removing the deforming force, it will regain its original dimension. And further, when we increase the stress, the large change in strain, and again if we remove the deforming load, okay, so it will not regain its original dimension, and that's why it's set a permanent set in the wire. Further, when we increase the stress or decrease the stress, वापस कम गया, वापस आ गया. Okay, so further increase in load or decrease in load, there is a large change in strain, and there is one point. This point is called neck formation. यहाँ पे neck formation होता है. मतलब इफ यू वांट टू सी एट दिस डायग्राम, अगर यहाँ पे देखना है तो ये जो वायर है, दिस वायर विल बिकम लाइक दिस. दिस विल बी लाइक दिस. तो यहाँ पे ये जो नेक फॉर्मेशन हुआ है, एक बार नेक फॉर्मेशन हो गया, मत इवन इफ यू डोंट अप्लाई द लोड और स्ट्रेस, इट विल ऑटोमेटिकली चेंज इन स्ट्रेन. लेंथ बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी उसकी, और एट वन पॉइंट देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ वायर विल नॉट सस्टेन फॉर लॉन्ग टाइम. एक बार यहाँ पे नेक फॉर्मेशन हो गया, भले आप लोड निकाल दो, ओके, जो अप्लाई लोड स्ट्रेस निकाल दो तो भी वो अपने आप ब्रेक हो जाएगी, राइट. तो ये जो रीजन है बी टू डी, दिस डी रीजन, बी टू डी रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड एज, और यहाँ पे एफ ले दो यहाँ पे, ओके. तो बी टू डी एंड डी टू एफ, तो ये जो पूरा पोर्शन है, दिस पोर्शन is called as plastic region. इसको plastic region बोलते हैं. No elastic limit is there, no elasticity region is there.
The many metals are there which obeys up to the elastic limit or some are also obey the plastic region. यहाँ पे ये जो रीजन है प्लास्टिक रीजन, मतलब यहाँ पे डक्टिलिटी प्रॉपर्टी दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे वायर कैन बी द मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. ओके, और डक्टिलिटी हो गया तो यहाँ पे ब्रिटलनेस उसका कम हो जाता है. यहाँ तक उसका ब्रिटलनेस हो सकता है अप टू द पॉइंट ही. ओके, तो यहाँ पे उसका ब्रिटलनेस कम हो जाता है और डक्टिलिटी बढ़ जाता है. फॉर एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, दीज आर दी डक्टाइल मेटल हैविंग डक्टिलिटी प्रॉपर्टी. और दूसरा होता है मैलेबिलिटी. तो मैलेबिलिटी में क्या होता है, वी कैन ड्रॉन इनटू शीट्स. जैसे गोल्ड है, गोल्ड का शीट बना सकते हैं. जैसे अभी मेरे पास जो अंगूठी है, राइट, सो दिस कैन बी मेड फ्लैटन. ओके, इसको फ्लैट बना दिया, शीट बना दिया, राइट. सो हियर वी कैन ड्रॉन इनटू शीट्स बिकॉज इट इज़ पॉसिबल. तो उसके लिए सॉफ्ट मेटल लगता है, राइट, मैलेबल मेटल लगता है. सो लेट्स राइट फ्यू पॉइंट. अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे इलास्टिक लिमिट, sorry, proportionality limit up to O to B elastic limit, or it is also called as yield point. And B to C, that is the B to C क्या प्लास्टिक रीजन होगा वो यहाँ पे. ओके, यहाँ पे डिफॉर्मेशन विल बी परमानेंट सेट बोलते हैं उसको. B to C मतलब ये वाला जो O इज द परमानेंट सेट, द वायर विल रिमेन इन द डिफॉर्म स्टेट, राइट. सो दिस इज द प्लास्टिक बिहेवियर. प्लास्टिक बिहेवियर जो ईसी है, प्लास्टिक बिहेवियर, और ये जो है ओबी रीजन, दिस इज इलास्टिक रीजन. right, so this is all about the stress strain curve, right. सो अभी देखते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, उसका पॉइंट लिख लेंगे. प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट. द इनिशियल पार्ट ऑफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन OA पार्ट, स्ट्रेट लाइन इज द प्रोपोर्शनल लिमिट. ओके, इन विच द हुक्स लॉ इज ओबेड, इन विच हुक्स लॉ is obeyed. And stress is directly proportional to stress. Stress is directly proportional to strain in the proportion, right. So this is called as proportional limit. O to A is the proportional limit. Now the second is yield point. Yield point, yield point, that is the OB, okay, or B point. Yield point is the B point. It is also called as elastic behavior, okay, or elastic limit. Yield point or elastic limit. Elastic limit. If the load is further increased till point B is reached, stress and strain are no longer, okay. If load increase beyond A to B, if the load increase beyond A to B, stress not directly proportional to strain, not directly proportional to strain, means Hooke's law not obeyed, in which Hooke's law does not obey, but after removing deforming force, the body regain its, बॉडी यहाँ पे क्या है, वायर है, ओके. द बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन completely. So it is called as elastic limit.
So point B is called as yield point. Point B is called yield point. Okay, and is also known as elastic limit. So now the third point, that is the C point, B to C region, that is the permanent set. Third one is permanent set, that is BC, okay, or EC, OE. If we increase the further load beyond B to C, if we increase stress beyond B, okay, then after removing stress, after removing deforming force, body will not regain its original dimension. Okay, so it will set the wire when there is no stress, right? So length of the wire when there is no stress is greater than original length, original dimension. Then there is a permanent set. There is permanent set. On strain axis. That is OE. Okay, so this point is called as permanent set. The deformation remain as it is. Okay, and deformation is irreversible. यहाँ पे reversible है, right? So यहाँ पे deformation is reversible. Deformation is reversible, and here it is irreversible deformation. Deformation is irreversible. Okay student, the last part of this curve, that is from point C to D. अभी आप यहाँ पे देखोगे, if you observe carefully, this small change in stress, there is a large change in strain. Okay, and this region is totally plastic region. There is no any elastic property it shows. Okay, so let us see, and at the last there is the formation of neck, and after forming the neck at point D, this point is known as breaking point or fracture point. वहाँ पे fracture होता है, wire get breaks into pieces. Okay, so fracture point, further increase in load causes a large increase in strain for relatively small change in stress. Okay, so until point D is reached, यहाँ पे D पे पहुँच गया, at which the fracture or breaking takes place. The material shows plastic flow. ये जो है ना, ये this material shows the plastic flow or plastic deformation from B to D. Okay, this is called as plastic deformation. Plastic deformation. Means it cannot regain its original dimension. Okay, and this is the ductile region also. It shows the property of ductility for the material which obeys in this way. Okay, so the material does not regain its original state when the stress is removed. The deformation is called plastic deformation. Okay, many of the substances, for example copper, aluminium, gold, silver and gold, right? So this material obeys the this ductility property here. Okay, this region it shows tensile property, or we can say ductile property shows in this region. Okay, so this is all about
the stress strain curve. Next possible question which I have in my mind. Here provided two graphs, दो ग्राफ आपको प्रोवाइड किए. For one graph is like this, okay, and another graph is this way. Let this graph is capital A, this graph is B, okay. Here also stress strain, here also stress strain. Now the question is asked, which material has greater Young modulus? Second question, which of the two is stronger material? Right. So definitely here the small large stress, large change in stress, there is a small change in strain. Okay, here if you observe carefully, the stress is small but the strain is more. Okay, so we know the formula for modulus of Young modulus, okay, that is elasticity, that is Y is equal to tensile stress upon tensile strain So if the stress is larger than strain, then this graph, this material will be shows more Young modulus. Okay, and if it is showing more Young modulus, so this will be stronger. This material will be stronger. Okay, so A shows graph A shows more stress as compared to strain, hence Y will be more for material A. And as the Young modulus is greater, so A is stronger than B. A is stronger than B. Okay, यहाँ पे इस which makes slope with this strain axis ज़्यादा steep है, less steeper है, ये ज़्यादा steeper है. Understand? So this is less strong, this is more strong. Okay. Now let's see some properties of metal or properties of material like ductile property. Ductile property is the property of a metal or property of material which shows the ductility, means that we can draw the wire, drawn into wire, okay, or more plastic region, shows more plastic region in the stress strain curve. Okay, even gold also we can draw the wires, copper, right, wrought iron, aluminium, copper are the example of ductile material. Okay, so their length can be changes corresponding to their stress. Okay, so they are ductile. And malleable, the next property, the next property of metal is or material is malleable. Malleable. It is the property of a metal, okay, in which we can draw into sheets. We can make the sheets. Okay, property in which we can make sheets from metals. Okay, so example, silver, gold,
aluminum, copper. These are the metal which shows the property of malleability. Now the next question is textual question है, what do you mean by brittle substance? Give any two example. Brittle property क्या होता है? Which does not obey this elastic region, okay, or it breaks within elastic limit. Elastic limit के within वो break हो जाता है, right? जैसे कि कौन सा लिया आपने, कास्ट आयरन जो होता है, right? कास्ट आयरन, right? और काफ़ी मेटल है जो फुटबॉल होता है मोटर का, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, पानी के अंदर जो होता है पाइप के जो लगाया रहता है, so that material is made up of the brittle material, okay. ग्लास जो है, ग्लास इसे ऊपर से नीचे गिरा दो वो टूट जाएगा, which cannot be drawn into sheets or which cannot be drawn into wires. उसको ऐसे ठोकोगे तो टूट जाएगा, right? मतलब it does not show any elastic region here, right? So it will break within elastic limit. इसके अंदर वो ब्रेक हो जाता है, so that material known as brittle nature, okay. Okay, as already we explained about the brittle substance, the substance which breaks within elastic limit, okay, are called as brittle material. Example, glass, ceramic, जो सिरेमिक टाइल होती है वो, जो सिरेमिक टाइल ऐसे हाथ से गिर के तो भी वो टूट जाती है, ओके. नेक्स्ट वन इज इलास्टोमर. इलास्टोमर आर दोज मटेरियल इन which obey the elastic limit, but for a small change in stress it shows the large change in strain. जैसे रबर बैंड लिया, ओके. रबर बैंड को आप वैसे पकड़ के रखो एक हाथ से और दूसरे में खींच के रखो, तो थोड़ा भी फोर्स लगाया तो ज़्यादा कंपेयर टू इट्स लेंथ, ओके, ज़्यादा वो एक्सटेंड होता है ओरिजिनल लेंथ से, राइट. एंड so that rubber band is called as elastomer, which regain its original dimension after removing the deforming force, okay. So that material known as elastomer, a material that can be elastically elastically stretched to a larger value of strain, to a larger value of strain is called elastic. For small increase in load, small increase in stress, for small value of stress, it's called as elastomer, okay. Rubber is an elastomer. Example इसका, rubber is the elastomer material, okay. It has a large elastic region, but it does not obey the Hooke's law. यहाँ पे Hooke's law obey नहीं करता है, right? But it may not obey Hooke's law because stress not directly proportional to strain. So there is a large change in strain, large change in length for small change in stress, and after removing that stress applied, the body regain its original dimension, and that's why it obey the elastic property, okay. It has an elastic region. Then what do you mean by elastic hysteresis? What do you mean by elastic hysteresis? Okay, you might have observed that the vulcanized
rubber, okay, in which what happen actually, whatever the stress strain curve is there, okay, stress strain curve, right, this is the stress, this is strain. After reaching at this point, it may not, when the stress decreases to zero, when the stress decreases to zero, the strain not decreases with the same value, same proportion, okay, it lags behind the stress, थोड़ा सा पीछे पड़ता है वो, there is the formation of loop, okay. So this is for increasing load, जब ये लोड बढ़ाते हैं, increasing load or stress, okay, or increasing load. So this curve is for stress strain curve for increasing load, and this stress strain curve for decreasing load. Stress strain curve for decreasing load. This is for increasing load, and there is a lagging behind. Okay, laggings. थोड़ा सा पीछे पड़ जाता है वो, right? So the strain lags behind the stress. Strain lags behind the stress, and that's why there is the formation of loop, closed loop, and this loop, area of loop indicate the energy dissipated, okay, area of loop जो है, that is the area of loop gives the energy dissipated, energy dissipated during deformation. So this is all about the stress strain hysteresis curve, okay. तो मतलब लोड बढ़ाते समय you will get this type of curve, and when we are decreasing the load, it will not retrace the same path, it will retrace the another path. This is what, okay, that's why it is lagging. So stress is lagging the strain. Next question दिया है, कैन यू टेल में, तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है, व्हाई डज अ रबर बैंड बिकम लूज आफ्टर रिपीटेड यूज. गर्ल्स आर वेयरिंग द रबर बैंड ऑन हेयर बैंड, ओके. तो कुछ दिन के बाद वो काम करना बंद कर देता है, वो उसमें प्लास्टिसिटी आ जाता है, इलास्टिक जो उसका कम हो जाता है. कोई भी लो, राइट, अपना नाड़ा होता है, नाड़ा इलास्टिक नाड़ा, वो भी उसका भी इलास्टिसिटी कम हो जाता है, क्योंकि आफ्टर कंटिन्यूस यूज, ओके. सो उसका जो इलास्टिक प्रॉपर्टी वो कम हो जाता है, इलास्टिक जो है, it crosses the elastic limit, there is a permanent set form on the rubber due to which it become loose, इसलिए रबर बैंड लूज हो जाता है. Now you might have observed that जो ब्रिजेस अभी कंस्ट्रक्शन हो रहे 100 ईयर्स के बाद, 80 साल के बाद, कुछ सालों के बाद जो ब्रिजेस है वो बेकाम हो जाते हैं, कुछ काम के होते नहीं, कोई गाड़ी चल गया तो कभी भी गिर सकता है, राइट. तो ब्रिजेस आर अनसेफ आफ्टर लॉन्ग यूज. क्यों होता है ऐसा? बिकॉज जो दिन भर दिन उसमें जो ट्रक चलता रहता है, राइट, कंटिन्यूस यूज ऑफ दैट, इट अंडरगो द रिकरिंग स्ट्रेस डिपेंडिंग अपॉन, राइट, द मूवमेंट ऑफ व्हीकल ऑन इट, कितने व्हीकल जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, राइट. एंड व्हेन ब्रिजेस यूज फॉर लॉन्ग टाइम इट लूजेस इलास्टिक स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेटली मे कोलैप्स. तो उसका जो इलास्टिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है ब्रिजेस का, एंड दैट्स व्हाई द ब्रिजेस आर अनसेफ आफ्टर अ लॉन्ग यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन है बकलिंग और बेंडिंग ऑफ बीम. उसको पहले इसको रब कर लेते, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज बकलिंग और बेंडिंग ऑफ बीम, जो टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन आपको जेईई में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय काम में आएगा. तो ये मान लो बीम है जिसका विड्थ जो है, विड्थ यहाँ पे बी है, और जो ये जो डेप्थ है ये डी है, ओके. सो विड्थ इक्वल टू बी एंड द डेप्थ इज इक्वल टू डी. मतलब ये जो हाइट है वो डी है और जो विड्थ है वो बी है,
और ये जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ दिस बीम इज स्मॉल एल, लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल एल। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे ये कैसे बेंड होता है, लेट अस सी हाउ डज इट गेट बेंड्स। मान लो यहाँ पे फिक्स किया दो एंड पे और यहाँ पे बेंड लाइक दिस, सो इट में बेंड, तो बीच में यहाँ पे बेंड होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से, यहाँ से एट द सेंटर इट में बेंड। ओके, अब मैं इसको कैसे दिखाऊँ आपको, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि इसको राइट तो ये ऐसे होता है, क्यूबॉइड शेप में होता है, क्यूब शेप में होता है बीम, और यहाँ पे जब कंटिन्यूस कुछ यहाँ पे लोड लगा है तो देयर विल बी बेंडिंग। आप पेन जो आपका मेटालिक स्केल है, मेटालिक स्केल्स पे आप ट्राई कर सकते हैं राइट, मेटालिक स्केल को बीच में से खींचो, सो इट विल देयर इज अ बेंडिंग ऑफ स्केल, तो बेंडिंग ऑफ बीम राइट, बीम बेंड होता है। अपने जो सीलिंग होता है, सीलिंग पे भी बीम होता है, उसके अंदर मेटालिक रॉड होते हैं, सड़े होती रॉड होते, तो कुछ सालों का उससे ज़्यादा लोड गिरने से वो बेंड हो जाता है राइट। तो देखते हो बेंडिंग कैसे होता है। सो देयर इज अ बेंडिंग ऑफ बीम लाइक दिस, ओके, दिस इज द डिप्रेशन और सैग, द डेल्टा, and that delta can be calculated by using a formula, delta is equal to, there is a formula, load, W is a load, WL cube divided by the 4y, y is angle modulus of the beam, B the breadth and D is the, that is the depth। तो ये जो है, ये पोर्शन जो D है राइट, तो ये यहाँ पे आपको ये डेल्टा कम करना है, तो डेल्टा कम करना है तो बेंडिंग कम करना है तो डी बढ़ाने का, मतलब जितना ज़्यादा विड्थ होगा, इसलिए बीम बड़े बड़े होते हैं, पतले बीम में तो जल्दी बेंड हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा चौड़े है बीम घर के, उसके ऊपर फ्लोर लग रहा है, तो वो डी अगर बढ़ाया राइट, तो उसका जो थिकनेस बढ़ा है, तो जो डेल्टा है, सैग है, बेंडिंग है, वो कम होगा। अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाट, सो इंजीनियर्स आर यूजिंग दिस फार्मूला वाइल कंस्ट्रक्टिंग दी बीम। इसलिए बीम ज़्यादा लंबे भी नहीं होते, ये जो लेंथ है, ये लेंथ भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर ये लेंथ ज़्यादा हो गई तो डेल्टा बढ़ सकता है। अंडरस्टैंड, इसलिए जब भी ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते नदी के ऊपर, रिवर के ऊपर, तो बीच में पिलर लगाते वो लोग ताकि सपोर्ट है उसको। बिना पिलर का अगर ब्रिज बना है तो वो कभी भी कोलैप्स हो सकता है। लेकिन कलकत्ता में, हैदराबाद में जो हावड़ा ब्रिज है, वो हावड़ा ब्रिज ऐसा एक ही ब्रिज है इंडिया में कि दैट ब्रिज इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश पीपल बिफोर 150 ईयर्स, ओके, विदाउट एनी पिलर इन दैट गंगा रिवर पे। आप देखो जब उस पर चलोगे ना, थोड़ा आवाज़ आता है, काफ़ी आवाज़ आता है, ऐसा लग रहा है कि वो गिरेगा, लेकिन नहीं गिरता वो, इट्स कंस्ट्रक्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग। उसको डिज़ाइन ही वैसा किया है। आप देखो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे देखो कि उसका जो हावड़ा ब्रिज है वो कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, कैसे काम करता है, विदाउट एनी पिलर इन बिटवीन, जैसे डायरेक्ट एंड पे एट द कॉर्नर ऑफ द रिवर ओनली। अंडरस्टैंड, बीच में, लेकिन ऊपर से उन्होंने ऐसे थोड़ा सा उसको सपोर्ट किया है मेटालिक पूरा ये करके, राइट। तो वो एक ही ब्रिज है कि उसमें पिलर नहीं है बीच में, बाकी सब आजकल जो ब्रिज बनते हैं उसमें पिलर लगाना पड़ते ताकि ये जो लेंथ है, ये लेंथ कम करना है। अगर लेंथ कम किया तो जो सैग है वो सैग कम हो जाएगा। अंडरस्टैंड। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक। Okay student, now let's define the strain energy. Okay, so let's have the wire which is elastic in nature. अभी आपको समझ में आएगा कि इलास्टिक जो प्रॉपर्टी है वो नॉट लाइक उनकी रबर इज इलास्टिक, एनी मेटल इज इलास्टिक। इलास्टिक मतलब विथ रेजिस्ट टू चेंज इन डिफॉर्मेशन, जो डिफॉर्मेशन नहीं होने देता है, दैट मटेरियल इज नोन एज इलास्टिक मटेरियल इन फिजिक्स। लेकिन हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्या है, जो रबर बैंड है वही इलास्टिक है, ऐसा नहीं है, बट दैट रबर बैंड डज नॉट ओबे द हुक्स लॉ। ओके, सो इफ आई आस्क वन क्वेश्चन कि विच इज मोर इलास्टिक, माइल्ड स्टील और रबर बैंड, तो योर आंसर विल बी रबर बैंड, बट माई आंसर इज माइल्ड स्टील। वाई? बिकॉज माइल्ड स्टील में जो फोर्स लगा है वो निकालने के बाद भी इट विल रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन अगेन। ओके, और विच हैज मोर एंग मॉड्यूलस, जिसका एंग मॉड्यूलस ज़्यादा, दैट इज मोर इलास्टिक। सो यहाँ पे एक वायर लेते हैं, दैट वायर इज ए इलास्टिक इन नेचर। और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर का, टू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस वायर ए, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, द फोर्स एफ इज अप्लाइड। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स देर इज अ एक्सटेंशन प्रोड्यूस, स्ट्रेन प्रोड्यूस, एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर, एंड दिस इज कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ द वायर, स्मॉल एल।
ओके और ये जो यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ है, दिस ओरिजिनल लेंथ इज कैपिटल एल. Capital A is the area of cross section. Okay, and y is the Young modulus. Let capital L. पहले ये देखते कि strain energy क्या है. The strain energy is defined as the potential energy gained by wire. Strain energy is defined as is the potential energy गेन किसने गेन किया? वायर ने. कभी वाइल स्ट्रेचिंग, वाइल अप्लाइंग स्ट्रेस. ओके, गेन बाय वायर ड्यूरिंग इलोंगेशन by a stretching force is called strain energy. Sometimes it is asked for 1 mark. जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था 11th में फाइनल एग्जाम में या टर्म एंड एग्जाम में, इसमें डिफाइन द स्ट्रेन एनर्जी एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी. दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द वायर ड्यूरिंग इलोंगेशन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी. यहाँ पे लोड लगाया. So let capital L be the length of wire. Capital F is the force applied. Small l is the extension in the wire. And capital Y the Young modulus. And A is the area of cross section. Then how can we write the expression for if the wire is perfectly elastic, then longitudinal stress is the stress corresponding to change in length. Okay, that is force upon area, or F can be written as pi r square because the wire is circular, cylindrical shape. Then longitudinal strain that is change in length upon original length. Then the Young modulus can be written as, so Young modulus of a wire or material of wire, that is capital Y. Capital Y is equal to, what is the formula for Young modulus? Is the modulus of elasticity corresponding to change in length, that is the ratio of longitudinal stress divided by longitudinal strain ओके बच्चों. सो फाइन. सो y इज इक्वल टू, y कैन बी रिटर्न, मैं यहाँ पे जरा लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो ये कैन यूज मैक्सिमम स्पेस. सो y इज इक्वल टू फोर्स, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय स्मॉल लेंथ अपॉन कैपिटल L. सो दिस विल बी F इंटू कैपिटल L अपॉन एरिया इंटू स्मॉल l. So here force can be written as, how to make F as a subject? So F is equal to Y A L upon capital L. So let it be equation 1. इसको equation 1 देते हैं. अभी ये हो गया applied force, जो हमने बाहर से force लगाओ. But at the same time to regain its, because the wire is elastic, तो to regain its original length, उसके अंदर एक इंटरनल फोर्स होता है. एंड दैट इंटरनल फोर्स को हम क्या होते हैं? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, विच ट्राई टू रिगेन द लेंथ ऑफ द वायर, विच ट्राई टू रिगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन, which try to restore the wire, position of the wire. So that restoring force, okay. So let small f be the restoring force
produces extension X, extension in the wire is X. Okay, then we can write the force can be used, the stretching force can be used from 0 to F, okay, during elongation. So how can we write the expression for this restoring force at certain instant, right? So restoring force small f is equal to Young modulus area of cross section of wire divided by original length into extension produced. So this is equation number 2. Don't get confused capital F and small f. Capital F क्या है, अप्लाइड फोर्स है, और स्मॉल f क्या है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है. ओके, अभी जब ये रिस्टोर होगा तो उसके अंदर क्या होता है, वर्क डन होता है, और जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट द स्ट्रेन एनर्जी. कोई भी अगर स्प्रिंग लिया, स्प्रिंग को हमने खींचा, ओके, तो व्हेन वी स्ट्रेच दिस स्प्रिंग, मेरे पास नहीं है, अगर आई कुड मैनेज दैट, तो स्ट्रिंग अगर एक्सटेंड किया तो मतलब जब एक्सटेंशन होगा तो क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी प्रोड्यूस होगी. ओके, सो लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल वर्क डन, बी द स्मॉल वर्क डन for the further small extension, dx, then work is equal to force into displacement. So dw is equal to, okay, force कितना है, कैपिटल F, this force y a upon capital L into x into dx. So this is equation number 3. ये जो फोर्स लिया यहाँ पे स्मॉल f आएगा, दिस विल बी स्मॉल f रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स y a अपॉन l इंटू एक्स, और डिस्प्लेसमेंट स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज बी dx. अभी ये स्मॉल वर्क डन है, लेकिन जब पूरा स्प्रिंग हम खींचेंगे, पूरा स्ट्रेच करेंगे, तो व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन. अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट. सो द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल अमाउंट ऑफ work done, total amount of work done in stretching the wire, from x is equal to 0 to L, from small x is equal to 0 to small l. Okay, that much extension can be found out by integrating equation. So can be found out by integrating equation 3. Equation 3 we get, so w is equal to integration 0 to small l. This is extension produced. Okay, so dw is equal to integration 0 to L f, sorry, this is ya upon L इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. अभी देखो यहाँ पे यंग मॉडुलस कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, टोटल जो लेंथ थी एल वो भी इनिशियली कांस्टेंट थी, तो इसको बाहर निकालेंगे. W इज इक्वल टू वाई ए अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू स्मॉल l x dx. अब इसका इंटीग्रेशन आता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, राइट. सो दिस कैन बी इंटीग्रेटेड लाइक दिस, वाई ए अपॉन एल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, द लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट स्मॉल l. नाउ टू फाइंड दिस, इसको सिंप्लीफाई करना है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा. सो दिस कैन बी रिटन एज वाई ए अपॉन एल इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपॉन, सॉरी, पुट एक्स इज इक्वल टू एल, पहले अपर लिमिट डालना है, तो दिस विल बी एल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0. So this can be written as y a, इसको मैं आगे लिखता हूँ, y a स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इंटू स्मॉल l. अभी देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 इज कैपिटल F इज इक्वल टू वाई ए स्मॉल l अपॉन कैपिटल L. तो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल F इंटू स्मॉल l.
तो दैट इज व्हाट इज द कैपिटल एफ इज द स्ट्रेस अप्लाइड. तो दिस इज स्ट्रेस और ये क्या है स्मॉल एल दैट इज एक्सटेंशन. सो फोर्स इनटू एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर. ओके, सो आई हैव टू रब सम पार्ट ऑफ इट. So W is equal to क्या लिखा हमने y मॉड्यूलस एरिया स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल. ओके, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 ओके कैपिटल F is equal to y a small l upon capital L. Put this value here, so we get W is equal to work done during the stretching of the wire. यही work done stored in the form of potential energy, and that potential energy act as the strain energy. Okay, so here F into वो दो भी लिखना पड़ेगा शायद, दो रह गए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे L/2 आएगा. ओके, दो रह गया. तो 1/2 F into L, that is 1/2 force, or we can say stress into this extension produced in the wire. This is what the work done during stretching, 1/2 F into L. Okay, so load stress into extension or load into extension, 1/2 load into extension produced in the wire. So this work done by stretching a force, is equal to potential energy, okay, or strain energy. So strain energy is equal to strain energy or potential energy is equal to 1/2 into load into extension. तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया. ओके, देन वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, that is W upon V is equal to, or strain energy per unit volume is equal to 1/2 Y और 1/2 F आएगा, 1/2 F into small l, okay, upon V. But volume of wire कैसे लिख सकते हैं? The volume of wire can be calculated area into length, 1/2 into F into small l upon area into capital length, original length. Okay, so this will be, so work done per unit volume, that is strain energy per unit volume, which is equal to 1/2 into what is F upon A? F upon A is stress. This is stress. What is small l upon capital L? Change in length upon original length, that is strain. So this is one of the formula, work done per unit volume or strain energy per unit volume is equal to 1/2 stress into strain. अभी इस अलग अलग फॉर्मूला बनाने का हमको पता है y is equal to यंग मॉड्यूलस is equal to stress upon strain. ओके, तो strain is equal to क्या आएगा? Strain is equal to stress upon y. Put this value in this equation. So what we can write? Work energy, the energy per unit volume, strain energy per unit volume, 1/2 stress into stress upon y. तो इसका बनेगा आपका स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2y. तो एक अलग अलग फॉर्मूला बनेगा इसके, ये एक फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला है. अभी राइट द एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू y इंटू स्ट्रेन.
okay, but stress is equal to y into strain. Put this value in this equation, so we will get 1 by 2 into y into strain. So 1 by 2 y strain square. So these are the different formulas. Okay, strain energy per unit volume. These are the formula for strain energy per unit volume. अभी न्यूमेरिकल लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. हेलो स्टूडेंट, अभी न्यूमेरिकल लेते हैं. कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर. तो गिवन लिख लेते हैं, जो दिया है गिवन क्वांटिटी, लेंथ ऑफ वायर कैपिटल एल विच इज 2 मीटर. नेक्स्ट क्वांटिटी दिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए इज 0.0225 मीटर स्क्वायर, सॉरी मिलीमीटर स्क्वायर. अभी ये मिलीमीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, कोई तालमेल नहीं जुड़ रहा है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज 0.0225 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर. लेकिन वापस ये जो है डेसिमल, ये कैलकुलेशन को प्रॉब्लम करेगा, तो इसको पूरा हटा देते हैं डेसिमल, और आई विल राइट इन होल नंबर 225, मतलब 1 2 3 4 4 डिजिट मैंने राइट शेप में शिफ्ट किया डेसिमल को. तो अगर इफ़ वी आर शिफ्टिंग द डेसिमल 4 डिजिट ऑन द राइट हैंड साइड, फिर उसका 10 का पावर 4 होगा, और ये 6, 4 और 6 10, तो इट इज़ 10⁻10 मीटर स्क्वायर. ये कन्वर्जन बराबर करने का एग्जाम, नहीं तो अगर इसमें गड़बड़ कर दिया पूरा न्यूमेरिकल आपका रॉन्ग हो जाएगा. मैंने लोड ऑफ 100 न्यूटन, तो फोर्स लगाया है, फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन. एंड यंग मॉडुलस भी दिया है, कैपिटल वाई ऑफ द वायर इज गिवन 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. टू फाइंड, क्या पूछा है, टू फाइंड वर्क डन व्हिल स्ट्रेचिंग वायर. ओके, वर्क डन दैट इज W. ओके, फॉर्मूला क्या है वर्क डन का? फॉर्मूला फॉर वर्क डन W इज इक्वल टू 1/2 फोर्स इंटू एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर. ओके, तो अभी यहाँ पे हमको पता है वाई, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला पता है, y इज इक्वल टू कैपिटल F इंटू कैपिटल L अपॉन एरिया इंटू स्मॉल l. तो फ्रॉम दिस वी कैन मेक अ स्मॉल l एज अ सब्जेक्ट. तो l को सब्जेक्ट बनाते F इंटू L अपॉन एरिया इंटू यंग मॉडुलस. पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल l हियर. ओके, यहाँ पे अगर डाल दिया क्वेश्चन 1 में, दिस इज इक्वेशन 2. ओके, सो we can write, putting value of 2 in equation 1, we can write work done is equal to 1/2 into force into length divided by area into young modulus. ओके, तो अभी सब्स्ट करो, यहाँ पे फोर्स 2 बार है, 1/2 इंटू 100 इंटू लेंथ 2 मीटर है, इट इज़ 2 मीटर, डिवाइड बाय एरिया दिया है 225 10⁻10 मल्टीप्लाइड बाय यंग मॉडुलस 2 × 10⁻11. दिस इज व्हाट द सब्स्टिट्यूशन. ओके, तो वेरी सिंपल, ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा. अभी यहाँ पे 25 4 जाएगा, 25 9 जाएगा, 2 1 जा, 2 2 जा, तो यहाँ पे क्या आएगा 200 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻2, ये कितना आएगा, डिवाइड बाय 10⁻1, ऊपर जाके -1 होगा वो. ये तो 0 हो जाएगा, कट हो जाएगा.
तो 20/9, तो 20/9 क्या है, 9 दूनी 18, 2.22. This is the answer. So take a screenshot. Okay, student. The second last topic of this lesson, we have discussed about the different properties of matter, that is the elasticity property, plasticity, and now the three properties, very important property of material, that is the hardness, strength and toughness. In our daily life हम लोग क्या करते हैं कि ये बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत हार्ड है, वो बहुत टफ है, हम लोग एक ही मीनिंग लेते हैं. बट एक्चुअली इन फिजिक्स ऑल दीज टर्म्स आर डिफर इन फिजिक्स. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हार्ड है वो जरूरी नहीं कि स्ट्रांग होगा, वो जरूरी नहीं कि वो टफ होगा, राइट. तो हार्ड मतलब क्या होता है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच एनेबल्स इट टू रेजिस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, कि वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है. मतलब इफ़ यू टेक अ डायमंड, राइट, डायमंड को अगर लिया तो उसको डेंटिंग नहीं होगा, डेंट नहीं पड़ेगा, खड्डा नहीं पड़ेगा, राइट. यहाँ लो कोई एक ये लिया मैंने, सपोज इफ आई टेक दी एनी मटेरियल, उसको हथौड़ा से मारा, उसका डेंट नहीं पड़ेगा. डेंट नहीं पड़ रहा मतलब क्या, डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, अपोज कर रहा है, तो दैट विल बी द हार्ड मटेरियल. जैसे डायमंड लिया, डायमंड को किधर भी फेंको, इट्स वेरी हार्ड, राइट. वो डायमंड इज यूज टू कट द ग्लास, या कोई भी कट करना है तो डायमंड यूज करते हैं. या आपने ड्रिलिंग मशीन देखा होगा, ड्रिलिंग मशीन का जो बीट होता है, आगे का जो नेल होता है, बीट होता है, ड्रिल बीट्स, दैट इज़ वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होता है वो, राइट. मतलब इट कैन इंसर्ट इन द आरसीसी दीवार में भी हो जाता है. आरसीसी सीमेंट का जो दीवार होता है, वॉल होता है, उसमें भी वो पेनिट्रेट होता है, इतना स्ट्रांग होता है वो, राइट. सो दैट इज व्हाट द हार्ड मटेरियल अपोज करते हैं. हार्ड मटेरियल हैव लिटिल डक्टिलिटी, थोड़ा डक्टिलिटी होगा उसमें, ज़्यादा नहीं होगा. डक्टिलिटी मतलब विच कैन ड्रॉन इनटू वायर्स, ओके. एंड दे आर ब्रिटल टू सम एक्सटेंट, कुछ उसको ब्रिटल भी होगा लाइक अ ग्लास, ओके. तो थोड़ा सा ब्रिटल भी हो, मतलब विच कैन ब्रेक विद इन इलास्टिक लिमिट्स. हार्डनेस ऑल्सो रेफर टू स्टीपनेस, देन और रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, स्क्रैचिंग, एब्रेजन एंड कटिंग. जैसे आपने देखा होगा, अभी देखो ये मेरे हाथ जो है, तो हाथ पे मैं ऐसे थोड़ा नाखून से भी ऐसे स्क्रैच पड़ा तो उसके स्क्रैचिंग दिखता है. इसका मतलब क्या कि ये हार्ड नहीं है, ओके. अगर इफ़ आई टेक अ मोबाइल का जो स्क्रीन होता है, स्क्रीन गार्ड होता है, राइट. तो मोबाइल का जो डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले पे भी अगर मैंने ऐसे कुछ किया उसको, राइट, उसको ऐसे किया तो भी स्क्रैचेस नहीं पड़ता है. या पीछे का ले लो, इसको अभी देखो, मैं ज़रा नाखून से कर रहा हूँ, ये जो मटेरियल है, दिस मटेरियल स्क्रैचेस पड़ रहे हैं क्या, नहीं, देयर इज नो स्क्रैचेस. इसका मतलब क्या हुआ, विच इज़ हार्ड, विच अपोज फॉर स्क्रैचिंग. हम स्क्रैच नहीं कर सकते, उसको एब्रेजन नहीं कर सकते, या कोई पॉलिश पेपर से इसको घिसा तो भी उसका जो स्क्रैचेस नहीं आएगा, राइट. सो दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज हार्ड. अभी ये हार्ड है. इसका जो गोरिल्ला ग्लास है, वो गोरिल्ला ग्लास भी क्या होता है, हार्ड होता है. इसमें देखो कुछ नहीं होता है. आई एम जस्ट मेकिंग द ट्राई टू मेक अ स्क्रैच ऑन दी डिस्प्ले, नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ हार्ड मटेरियल, ओके. सो it is a property of a material which gives in the ability to resist permanent deformation when load is applied on it. तो permanent deformation भी नहीं होने देता है, अपोज करता है. greater the hardness, greater the resistance to deformation. okay, hardness is differ from strength and toughness से और strength से, strong से different है. okay, diamond is the hardest whereas aluminum is softest और soft है वो. Now the strength, what do you mean by strength of the material? If a force is applied to a body, it produces deformation in it. Okay. Higher is the force required for deformation, the stronger is the material. जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा. ओके, तो हैज़ मोर, इसका मतलब इट हैज़ मोर स्ट्रेंथ. स्टील हैज़ अ हाई स्ट्रेंथ, प्लास्टिसिन क्ले नॉट स्ट्रॉन्ग, ओके, इजीली डिफॉर्म बाय स्मॉल फोर्स. अपना कनिक ले लो, डग ले लो, डग में थोड़ा सा फोर्स लगाओ तो वो ऐसा डिफॉर्म हो जाता है, मतलब विच इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, ओके, नॉट अ स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है. नाउ द टफनेस, व्हाट इज द टफनेस? टफनेस इज द एबिलिटी
ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट फ्रैक्चरिंग, टूटने नहीं देता है, उसको तोड़ने नहीं देता है, राइट। तो दैट इज व्हाट द टफनेस होता है। व्हेन रेजिस्ट फ्रैक्चरिंग व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देना है तो जो फोर व्हीलर के ग्लास होते हैं, विंड स्क्रीन होता है, आगे का विंड स्क्रीन, उस पर अगर किसी ने पत्थर भी मारा तो पत्थर अंदर टूट के, मतलब अंदर होल गिर के अंदर वो ड्राइवर को लगता नहीं है, विच प्रिवेंट फ्रॉम द इंजर टू द ड्राइवर। क्यों? क्योंकि जो ग्लास होता है विंड स्क्रीन का वो ऐसे एक साथ जमा हो जाता है, देखो आप, टूटने के बाद, ओके। तो नहीं तो क्या होगा, अगर वो टफ नहीं रहा, ग्लास टफर नहीं रहा, तो क्या होगा, व्हेन वी थ्रो द स्टोन ऑन दैट ग्लास इट मे मेक द होल बना देगा, एंड एट वंस इट मेक द होल, सो इट मे हीट टू द ड्राइवर, ओके। तो वो जो ग्लास है विंड स्क्रीन की, फोर व्हीलर की, एसटी की, कार की, द विंड स्क्रीन ऑफ कार जो फ्रंट होती हो, दैट इज वेरी टफ, ओके। So plasticine clay is a relatively tough, okay, as it can stretch and deform due to the applied force without breaking। जो प्लास्टिसिन होता है वो ब्रेक नहीं होने देता है, राइट, लेकिन वो बेंड होता है, ओके, बेंड होता है, स्ट्रेच होता है, सब कुछ होता है, डिफॉर्म होता है, बट वो ब्रेक नहीं होता है। जो ब्रेक नहीं होता है वो टफन है। अभी आजकल जो प्रेस्टीज के वगैरह जो भी गैस स्टोव है, 4 बर्नर 3 बर्नर गैस स्टोव, उसके ऊपर जो ग्लास होता है, दैट ग्लास पे लिखा होता है टफन ग्लास, मतलब उस पर अगर हथौड़ा भी ऐसे मारा ना तो उसके टुकड़े नहीं पड़ेंगे विदाउट ब्रेकिंग, राइट, वो जमा हो जाएगा ऐसा, लेकिन टूटता नहीं, दैट इज अ टफन ग्लास। अभी कुछ मटेरियल ऐसा होता है कि विच शोज ऑल 3 प्रॉपर्टी, कुछ एक सिंगल प्रॉपर्टी दिखाता है। तो देखते हैं कुछ मटेरियल, बुलेट प्रूफ ग्लास, जो बड़े बड़े VIP होते हैं उनकी जो गाड़ियाँ होती है, वो गाड़ियों को जो ग्लास होता है, दैट ग्लास इज मेड ऑफ बुलेट प्रूफ ग्लास। वो क्या कहते हैं, इट इज़ हार्ड, टफ, बट नॉट अ स्ट्रांग। वो स्ट्रांग नहीं है, राइट, बट इट इज़ हार्ड एंड टफ। टफ की वजह से क्या होता है कि वो ब्रेक नहीं होता है, ग्लास जो ब्रेक नहीं होता है, राइट, वो वहीं पे जमा हो जाता है। ड्रिल बिट जो होता है ड्रिलिंग मशीन का, दैट इज़ वेरी हार्ड, स्ट्रांग, स्ट्रेंथ ज़्यादा है और टफ होता है, इसलिए वो वी कैन यूज एनीवेयर एल्स। पत्थर पे भी वो होल बना सकते हैं, या से RCC का दीवार है वहाँ पे भी होल बना सकते हैं। एनविल मतलब जो आयरन होती है, ब्लैक स्मिथ जो यूज़ करते हैं, या जो सोनार लोग होते हैं जो पिट करते हैं, राइट, बड़ा आयरन बोलते हैं उसको मराठी में। तो वो जो आयरन है एनविल, उसके ऊपर जो लोहार से लगाता है, घाव लगाता है हथौड़ा से, हमर से, ओके, तो थोड़ा सा उसका डिफॉर्म होता है, ज़्यादा डिफॉर्म नहीं होता है, राइट। सो इट इज़ वेरी टफ की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा वो बेंड हो जाता है। स्ट्रॉन्ग बट नॉट अ हार्ड नहीं हो, ओके। हार्ड का क्या है कि वो रेजिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्ट नहीं होता है। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, राइट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ एंड टफनेस। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल हैव द फ्रिक्शन इन सॉलिड, ओके। चलो बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।